start today's conversation, I'm going to share the responses, and based on a little survey that I did, I asked 5 people, what do they think about stand-up comedians of Pakistan? और मैं आपके साथ वो responses अभी read करने वाली हूँ. पहला response ये था कि they are funny, but I wouldn't want my child to be one. पहला response. दूसरा response, stand-up in Pakistan is just therapy with a mic. तीसरा response, comedians in Pakistan are brave, also slightly unhinged, both. Fourth response, I once laughed at a stand-up show and felt guilty for 3 days. And finally, the fifth response, which is the most interesting one, comedy is haram adjacent. Assalamu alaikum and welcome to Rise Beyond Titles. I am your host Urusa Miraj और आज मैं conversation कर रही हूँ फराज अहमद से. Assalamu alaikum Faraz, thank you so much for coming to the show and I'm sure कि आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है. एक चीज़ before you respond फराज, क्योंकि आज आपने ज़्यादा बोलना है. मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फराज का एक कॉर्पोरेट इमेज है, आइडेंटिटी है, जो कि रिवील करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट है that is that he is a stand-up comedian and he is called crazy gentleman. देखिए बड़ा मज़ेदार एलिमेंट है, क्रेज भी है और जेंटलमैन भी है. सो वेलकम फराज. थैंक यू सो मच. पहले वालेकुम सलाम का भी मौका नहीं दिया तो पहले उससे शुरू कर लेते हैं. जी बिल्कुल. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड कहाँ से शुरू करें? शुरुआत तो मैं करूंगी ना. लेट मी गिव यू द क्यूज. करें बिल्कुल करें. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो एपिसोड का एक रिचुअल है और वो रिचुअल ये है द ब्लैक कार्ड. Okay. So you see this black card, ये ऐसे ही नहीं रखा, ये शो पीस नहीं है. This has its significance. Okay. And इसकी significance ये है कि I give it to each of my guests and they are supposed to tap it twice. Okay. ठीक है. Tapping twice signifies कि आप जो भी जवाब देंगे वो ऑनेस्टली देंगे. तो ओथ लेना है मतलब. जी. तो ओथ मैं नहीं दिलवा रही आपसे, आप सिर्फ टैप कर दें. So just tap it twice and I'm going to read your black card question. देख रहे हैं आप लोग, आवाज भी आ गई 2 दफा. ठीक है, जबरदस्त. तो भाई जो जवाब आएगा वो सच आएगा और बस सिर्फ सच आएगा. जरा क्वेश्चन सुने, थोड़ा गहरा है. अल्लाह खैर. ठीक है. सो गहराई में भी जाएंगे और ऊपर भी आएंगे. जरूर. पाकिस्तान gave you a stage name and a corporate job. Yeah. Which one do you actually introduce yourself with, especially when you are nervous? The stage name. The stage name. Nervous होते हो तो stage name use करते हो. Why? Because nerves. Corporate identity अच्छी नहीं लगती. नहीं, क्योंकि nerves को काम करने के लिए stage करा, मतलब इसकी राह जो है वो ली गई थी. Okay. So I think आपके सवाल के लिए honest जवाब था, तो honest जवाब यही है कि the stage name is what I prefer with. Okay. लेकिन एक twist है इसमें. ठीक है. Twist आने दे. Twist ये है कि stage name ही Crazy Gentleman है और मेरी consultancy का नाम भी Crazy Gentleman है. Okay. So that's how I married the two. Okay. So now the nerves are calm in any setting I'm in. तो वो कहते हैं जी Crazy Gentleman आ गए. अब वो corporate में जा रहा हूँ तो भी मुझे Crazy Gentleman बोल रहे हैं. Okay. जब stage पे आ रहा हूँ तब भी हो रहे हैं. तब भी Crazy So Gentleman. that is how I was like कि ये सही है, ये solution है भाई. Exhaust नहीं हो जाते? Holding two identities. एक तरफ आप बैठे हुए मीटिंग्स में, आप डिस्कस कर रहे हैं हार्डकोर KPIs और दूसरी तरफ स्टेज पर चढ़ के उन्हीं चीजों का मजाक बना रहे हैं. तो आपको ये नहीं होता कि you know it's not just a double life, it's kind of a civil war. It's more like इसमें अगर 2 perspectives बताऊं. Fun thing you asked, बड़ा मजा आ रहा है मुझे. सवाल अच्छे हैं और अभी काम अच्छा किया आपने. Thank you. So I think first thing is कि yes, corporate की जो exhaustion थी उसको थोड़ा सा dissolve करने के लिए ही कोई activity ढूंढी थी. So that's when I took the stage. और फिर अब आपने जैसे rightly put किया है कि भाई वहाँ की सारी चीज़ों को निकाल के स्टेज पे लाते हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है. तो थक नहीं जाते. इट्स मोर लाइक द सेकंड पर्सपेक्टिव इज कि आपकी एक ऑल्टर ईगो होती है या एक ड्यूल पर्सनालिटी लोग कहते हैं. मैं इसको ज़रा डिसएग्री करता हूँ. ऑल्टर ईगो है विच इज़ एवरीवन हैज़ इट इन देम. एंड आपका जैसे मिसाल होती है ना, आप घर पे एक आपकी पर्सनालिटी है, ऑफिस में एक है, स्कूल में एक है, दोस्त यारों में एक है. तो इस तरह से ही दिस इज़ ऑल्सो मी
and the corporate is also me. Okay. But when the corporate gets too much, so I need the stage so that the other me can get me life and get me balance. Okay. वो चीज़ Perfect. बहुत ज़्यादा स्टेज मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टेज है, क्योंकि उसकी जो पंजाबी में कहते हैं ना चस आती है या किक आती है, वो ऐसी है कि फिर द स्टेज इज लाइक दैट इज माय प्लेग्राउंड ना. अब वो स्टेज कॉमेडी के लिए तो एक है, उसके साथ अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, कहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहीं टॉक दे रहा हूँ, तो स्टेज इज व्हाट एम्पावर्स मी. Yeah. इट रिमाइंड्स मी ऑफ कि एग्जॉशन कोई चीज ही नहीं है ना, बिकॉज true, द मोर true. आई डू इट द मोर आई एंजॉय इट. अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है कि कभी ऐसा हुआ कोई सीरियस मीटिंग में आपका वो जो क्रेजी जेंटलमैन वो वाला निकल गया हो? क्या आप होल्ड ऑन ही नहीं कर पाए, बेसाख्ता बोल दिया? कभी नहीं, काफी ज्यादा हुआ है. अच्छा, काफी एंड ज्यादा आई हुआ। थिंक द फन पार्ट इज, इफ आई मे टेल यू, Yeah. मेरी जो लास्ट जॉब मैंने की थी बिफोर आई स्टार्ट माय कंसल्टेंसी रूट, उसके अंदर मेरे जो लाइन मैनेजर थे जिन्होंने मुझे हायर किया था, वो सबको Yeah. मेरा तारुफ ऐसे देते थे कि दिस इज फराज, इज XYZ, ये काम देख रहे हैं. और मैंने इनको हायर इसलिए किया क्योंकि कमेडियन है, एंड दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस विद. Oh my God. अब ये कैविएट जब आपने दे दिया और आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं या कुछ भी प्लान हो रहा है, तो मैं लूज बॉल आती थी तो मैं छोड़ता नहीं था. सो दैट इज वेयर आई वुड एंजॉय इट. एंड शुरू में पहले होता था ना, ओ आई मेड अ बूबू, यार ये करना नहीं चाहिए था, गलत जगह थी, यहाँ नहीं करना चाहिए था. बट देन आई कम फ्रॉम एन इंडस्ट्री विच इज not in the bad way, but it's known for its eccentricism, right? Yeah. क्या और क्रेजी वहीं से आया है. Okay. जो आइडेंटिटी का उसका रूट था, एडवर्टाइजिंग से मैंने करियर स्टार्ट किया था. Okay. तो एडवर्टाइजिंग में हम सबके मोरे थोड़े से ऊपर का मेवर जो है ना, जरा नॉर्मल हिला नहीं हुआ होता. जो नॉर्मल लोग होते हैं एडवर्टाइजिंग में सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. तो क्योंकि वो आपके मोरे हिलते हैं, तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी ऐसी होती है, भले वो किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो एजेंसी के अंदर, चाहे वो बिजनेस में, चाहे क्रिएटिव में, स्ट्रेटजी में, किसी में भी. देयर एनवायरनमेंट इज सच के इट्स कंड्यूसिव फॉर गिविंग यू दैट थॉट के मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ. लाइक आई हैड फ्रेंड्स हु वर डूइंग एडवर्टाइजिंग, सडनली वो योगी प्रैक्टिशनर बन गए. Okay. कोई बेकिंग में चला गया, कोई पैरेलल के अंदर दे गॉट इनटू टीचिंग एंड दे सेड दिस इज माय साइड ऑफ मी. तो मैंने अपना पैरेलल जो निकाला वो मुझे कॉमेडी में तो मजा किसने आया. एक्सप्लोर किया? I mean, who identified this comedy in you? I You think yourself, or it was it there? so it was a very self-discovery based journey. Okay. Because it was interesting. more of an experiment. और मैंने कभी प्लान नहीं किया था ये ज़रूर पता था कि हाँ, growing up I was entertaining in friends and family in general. मतलब ये नहीं कि जोक सुना रहे हैं, but I was just someone who was very lively and I'm easy to connect with, दोस्ती कर Okay. लेता हूँ. Okay. तो जब कॉमेडी का पता लगा, मैंने कहा अच्छा इसमें जोक्स लिखने होंगे. हमने तो भाई बचपन से वो SMS फॉरवर्ड आ रहे हैं या पहले ईमेल्स पे फॉरवर्ड आते थे, Yeah. बहुत पुराने, हम काफ़ी पुराने, उम्र नहीं बता रहा मैं अपनी, लेकिन ये कि उसके अंदर when that opportunity came, so I said okay, let's give it a shot. Jokes Okay. लिखना. So this skill itself was also something new I was getting into, कि आप Okay. जोक लिखना is a craft. तो मैंने कहा कि तो अच्छा है कि चलो कि एक एक्टिविटी, एक हेल्दी एक्टिविटी कि आई वुड चैलेंज माई ब्रेन टू फर्दर वो. मैंने कहा अच्छा ये लिखना क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं ज़िंदगी में, अच्छे इसको फ़नी कैसे बनाएं. सो देन नेचुरली ओवर टाइम आपको फिर करते 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 होता है कि अच्छा यार इट्स ऑल हाउ यू आर सीइंग द वर्ल्ड, और आप उसको बता दें. सो अगर मैं इसकी मिसाल एक अच्छे सेंस में एक देता हूँ, तारे ज़मीन पर किसी ने अगर देखी है तो ईशान, ऑल्दो द किड इज़ डिसलेक्सिक, Yeah. राइट, बट वो जब छोटी सी बात करता है ना, किताब को खोली होती है, टीचर कहती है कि पढ़ के बताओ, तो वो कहता है ये अल्फाज नाच रहे हैं, Yeah. right? So he says it the way he is seeing it, True. without any वो, because and he's not taking the victim card on कि मैं dyslexic हूँ. तो इसी तरह से जब मैं कॉमेडी में घुसा तो मैंने कहा कि I'll say it the way I'm feeling it. Okay. हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि कुछ फिल्टर्स हम ज़रूर करते हैं, कल्चरली, सोसाइटली आपको देखना होता है कि आप ओवरबोर्ड ना चले जाएं, कि बिल्कुल. हंसाते हंसाते गुस्सा ना दिला दें किसी को. बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल. तमद्दुन के दायरे में, तमीज़ के दायरे में काम कर रहे हैं. अब वो एक डिबेट होता है कि जी मज़ा तो उसी में आता है जब थोड़ी बदतमीज़ी और होती है, थोड़ा और आप करें. सो यू डिफाइन योर ओन बाउंड्री एंड यू से कि भाई व्हाट एम आई नोन फॉर. तो आपने जो मेरी शुरू में बात की, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी भी है और वो भी है. सो मैंने इस बैलेंस के लिए कहा कि अच्छा यार मैं एक टाइप ऑफ कॉमेडी करूँगा. Okay. इट्स ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, जो मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ किया है मैं वो बताऊँगा, जो लोगों ने मेरे साथ किया है वो बताऊँगा, बट इट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग अदर्स अ सैड रियलिटी Yeah. और Yeah. समथिंग, बट मोर ऑफ अ चांस कि यार रिलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बॉस ने बहुत ज़्यादा सुनाई हो लेट आने पे, Yeah. उस पर कोई सिनेरियो बना हुआ है, या आपके
जो लोग क्रेडिट ले लेते हैं Yeah. टीम वर्क के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी से शुरू होता है कि भाई प्रोजेक्ट में नाम लिख देना, खाना खिला दूंगा, बिल्कुल, समथिंग लाइक। बिल्कुल तो बिल्कुल ये छोटी छोटी नुआंसेस हैं जो लोग आप रिलेट कर सकते हैं, तो पीपल कनेक्ट विद यू। ओके तो मुझे इस वजह से फिर वो मजा आना शुरू हुआ। आई वाज लाइक यार अच्छा ये तो चीज़ अच्छी है, तो वीकडेज में नौकरी करेंगे, वीकेंड पे ये तफरी अपना करेंगे। यूनिफॉर्म उतार के अपना कॉर्पोरेट का आप तफरिया करेंगे। एंड दैट हैज बिन what has been my drive, and I Okay. mean I took a hiatus some time के लिए बीच में, जब ये कोविड का टाइम आया हुआ था, तो स्टेज तो कहीं भी नहीं था। बिल्कुल अब घर बैठ के अब अम्मा अब्बा को एक हद तक ही हंसा सकते हैं, अब वो भी हम सभी घर में लॉकडाउन में अजीब से हुए थे, वी वर बिल्कुल। नॉट आवरसेल्व्स, राइट। तो वो बहुत ही एक अजीब सा साल था मेरे लिए। हम लाइक यार मुझे स्टेज चाहिए, मतलब ये अब 5 मिनट के लिए मिले लेकिन ये चाहिए। ओके So once the stage get like you get the you know the overall connection with it, उसके बाद you can't let go या and you have to. ट्रू अब people ask me कि अच्छा यार आप कॉमेडियन हैं, आप वीडियो कंटेंट भी बनाएं, आप रील्स बनाई करें। I said I enjoy the stage a lot more than the camera. ओके I'm more comfortable behind, यहाँ जैसे बॉयज खड़े हैं ना behind the camera. या Behind the camera मैंने बहुत काम किया है in the advertising industry as a director भी लेकिन किया ऑन है। द कैमरा ऑन द कैमरा मैं, मुझे कोई बोल दे भाई ये एक्टिंग कर लो आके, मैं कर लूंगा, बट इफ आई हैव टू होल्ड द कैमरा एंड लुक एट माई सेल्फ, तो पहले तो मुझे कुछ अजीब सा और लगता है ना, कहते हैं नहीं मैं अपने आप को क्यों देख रहा हूँ, मतलब Okay. एक वो चीज़ है। सो इट इज देयर, आई कैन फेस 500 people, 1000 people in an audience and Yeah. perform in front of them. सो द them a ऑडियंस talk. गिव्स यू द किक। The audience is the kick. मैं एक साइलेंट कमरे में बैठ के अपने आप से बात करूं तो ये मैं शायद लिखते हुए कॉमेडी कर लूंगा, लेकिन कैमरे के सामने नहीं कर सकता। सही सही। चलें जी, अब आपकी एक सच्चाई और एक स्टार्ट तो हमें पता लग गया, बट अभी तक हम बड़ा गहरी बातों में की तरफ जा चलें रहे थे, चलें ठीक है। चलते तो अब जरा सा फिर ऊपर आते हैं। जी जी We are going to do a small segment which is Okay. called jargon autopsy. So we're going to Okay. do an autopsy of the jargon, the typical corporate jargons. ओके और मैं ये करूंगी कि आपको स्टेटमेंट्स दूंगी कॉर्पोरेट jargons जो Okay. टिपिकली कॉर्पोरेट में बोले जाते हैं, एंड आई वांट यू टू गिव योर वर्जन टू इट। ओके ठीक है, ओके तो वो क्रेजी जेंटलमैन ऑनेस्ट वर्जन मुझे आप आपका बेफिक्र सुनना रहें। है, ठीक है। आप लोग अपने कान बंद कर लें अगर कोई बात बुरी लग जाए तो। अच्छा, पहला जुमला, वी आर लाइक अ फैमिली हियर, अ टिपिकल कॉर्पोरेट स्टेटमेंट। बुलशिट, दैट्स Okay. वन वर्ड। ऑलराइट, ओके फैमिली वो है जहाँ आप पैदा होते हैं, जिस घर से आप ऑफिस जाते हैं, ओके बस। ऑलराइट, लेट्स सर्कल बैक ऑन दिस। हम लोग बहुत वेले हैं। ओके, वी अप्रिशिएट योर पैशन। हमें पैसे अपने लिए ज्यादा अजीज हैं, आप बस लगे रहें। ओके, प्लीज बी मोर प्रोएक्टिव। ये तो बड़ा टिपिकल है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं हायर किस लिए किया है, Okay. दैट्स व्हाट इट मींस। माय डोर इज ऑलवेज ओपन। इट्स नेवर ओपन। It's never open. This role needs someone who can wear many hats. हमारे पास पैसे कम है और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, तो प्लीज आ जाए, हम डेस्परेट हैं। Okay. And we are going in a different direction. Okay, this could be, it's a very, I think very generic. Confused है, उसको खुद नहीं पता क्या करना है। All right. तो किस तरह की observations जो हैं आप लेके और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं? Because I know that you've done a few special stand-up comedy sessions for women. So how Yeah. do you kind of entertain women? Why women? So this is an interesting story. थोड़ा सा इसकी बैक स्टोरी ज़रूरी है। My first comedy special that I produced was back in 2017. So मैंने Okay. कॉमेडी शुरू करी थी 2015 में। उस वक्त होता था कि कुछ जगहें थी या कराची में, DHA में एक दो वेन्यूज थे। वेन्यूज की बड़ी कमी हमारे यहाँ रही है, एक बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, विच इज़ वाई इट स्टिल हैजंट ग्रोन द वे दैट वी विश फॉर इट टू। तो उसमें हमारे ग्रुप शोज होते थे कि हर 8-10 कमेडियन, 6-7 कमेडियंस ने अपने 5-5, 10-10 मिनट का मटेरियल लिखा, एंड एवरीवन गेट्स टू परफॉर्म, एंड Okay. इट्स अ टोटलिटी ऑफ 1 hour शो। स्पेशल होता है जिसमें यूजुअली 1 घंटे का आप अपना सोलो करते हैं, एंड इट्स अ Yeah. वेरी बिग डील फॉर एनी कमेडियन टू डू इट। True. I took that chance on myself and I said कि मुझे मज़ा इतना आता है, why not do it। और उन दिनों मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा था, Okay. तो मैंने कहा let's take this as a project of my own, और एक पहला entrepreneurial venture के तौर पे। So the first show's title was Crazy Gentleman. I was Okay. introducing myself as an individual out there. कुछ लोग जानते थे, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा बड़े लेवल पे ना, मतलब रेडियो, टीवी, सब चीज़ों पे साथ पार्टनर करके ज़रा थोड़ा सा उसको मार्केटियर, तो क्योंकि पहले थे हम, वैसी बात है, पहला वो काम आता है, तो वो पैकेज करके डाला। तो दैट वाज अ मिक्स ऑडियंस का नॉर्मल शो जो होता है। True. उसके बाद सालों तक मैं यही कर रहा था।
फिर वन फाइन डे लास्ट ईयर फरवरी 2025 में मैंने अपना जब ये मिक्स ऑडियंस का शो किया, उसमें कोई एक दो खवातीन आई हुई थी who happened to be from the corporate network, Okay. and they met at some other networking event जहाँ पे 3-4 और खवातीन को वो बता रही थी यार you should have come, बहुत मज़ा आया था, and he does such a मतलब मज़ेदार काम, और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, like it's very fun, and ये he knows how to hold his boundaries yet be very, तो बड़ा वो कन्विंस कर रही थी। वो उन खवातीन ने आगे से ऐसी छेड़ दिया कि व्हाई डोंट यू डू अ शो जस्ट फॉर अस। मैंने कहा मैं इतना पागल नहीं हूँ कि 5 खवातीन के लिए पूरा हॉल बुक करके मैं आपको करूँ। तो मैंने नो मतलब जस्ट फॉर हम वुमेन। मैंने कहा ओ यू मीन लेडिस नाइट। अब मैं लेडिस मतलब वो मिनी बस वाला लेडिस हम मारता है, मैंने ऐसे ही बोला लेडिस नाइट। उन्होंने कहा हाँ व्हाई नॉट। अच्छा मैं घर आया, मैंने बेगम से मशवरा किया कि क्या करूं। उसने बोला चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब कि सुसाइड है या छक्के लगेंगे, दो में से एक है। मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं। अच्छा आई लव टेकिंग रिस्क, और टू द पॉइंट ऑफ के लोग कहते हैं पागल है, सो क्रेजी कम्स फ्रॉम दैट, राइट। सो मैंने जब वो शो अनाउंस किया है तो उस वक्त मतलब मजे की बात ये, द पोस्टर ऑफ द शो डिड नॉट हैव माय फेस, द नेम वाज क्रेजी जेंटलमैन, AKA फराज अहमद। जब शक्ल ही नहीं पता तो लोग, जिन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, कुछ भी नहीं पता, शक्ल ही नहीं है उसमें। एंड उसमें टिकट वाला के साथ जब पार्टनर किया तो टिकट वाला की टीम ने बोला कि यार दिस थिंग इज लाइक गेनिंग मोमेंटम सो फास्ट कि टिकट्स इतनी जल्दी हमने भी नहीं देखे कि इवेंट से हफ्ते पहले बिकना शुरू हो गए इतनी जल्दी, वरना बिल्कुल 1-2 दिन। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या आने वाला है। नाउ द फर्स्ट शो दैट हैपेंड एट हैबिट सिटी इन कराची, उसमें आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। वहाँ सीटिंग कैपेसिटी इन टोटल उनकी मुश्किल से 100 लोगों की, अगर वो भी बिल्कुल चिपक के बैठे ना, मतलब खवातीन तो बैठ सकती है चिपक के, मर्द भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मिक्स ऑडियंस हो तो 80 तक आ सकते हैं। उस जगह पे 135 खवातीन थी। तो द एंटायर बेंचेस वर फुल, द फ्लोर पे चटाइयाँ वर फुल। वहाँ पे कुछ खवातीन अपने वॉकर पे आई थी, मतलब ओल्ड एज वाली भी आई थी। तो आई हैड गर्ल्स फ्रॉम लेट टीन्स ऑल द वे टू 60s एंड अर्ली 70s। तो एक मिक्स खवातीन का जब सारा आया तो मैं बैक स्टेज था, तो मेरी बेगम अंदर आई, फराज हॉल फुल हो गया है। हमने कहा अच्छी बात है। नहीं फॉल फुल हो गया टू द पॉइंट कि मतलब तुम्हारे स्टेज के 7 तक खवातीन बैठी हैं, लाइक एक स्पेस होती है ना थोड़ी, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। एंड द वन मोर थिंग दैट आई रेड, एंड दिस इज समथिंग दैट शुड बी हाईलाइटेड, स्टैंड अप यूजुअली आप जो ग्लोबली देखते हैं, आपको मैं शुरू में भी बता रहा था कि जोक्स लिखने थे, स्क्रिप्टेड है। The other risk I took was that I'll do a completely unscripted show. Oh my God. So you did it completely unscripted. So last year, February was the first time I did a special, which was a 1-hour show completely unscripted. और वो सरप्राइज ऐसा था कि मेरी बेगम तक को नहीं पता था। वो शो पे मेरी होस्ट वो होती है, तो शी अनाउंसेस द थिंग्स एंड देन कॉल्स मी ऑन स्टेज। तो जब वो शो से बिल्कुल शुरू होने से पहले जो मिक्स ऑडियंस वाला शो था, उस पर फरवरी में मुझसे कहती है कि तुम्हारा स्क्रिप्ट तुमने देख लिया, अच्छी तरह तैयारी कर ली, मतलब जैसे अम्मा नहीं पूछती एग्जाम का। मैंने कहा हाँ कर ली, तो तुम जाओ, मतलब लेट मी बी माई सेल्फ। बैक स्टेज आपको टाइम चाहिए होता है बिफोर द शो। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने सबको बोला, आपने प्रमोशंस में देखा होगा सरप्राइजेज इन स्टोर, सो द सरप्राइज एक ही बड़ा सरप्राइज है, देयर इज नो स्क्रिप्ट फॉर टुडे, सो आप लोग ही मेरा मटेरियल है। नाउ सडनली ऑडियंस में यूँ बैठी थी ना, यूँ कि मतलब दे शिफ्टेड इन देयर चेयर्स कि अच्छा अब मतलब सब पे अटैक होगा। सो देन आई सोर्स्ड एवरीथिंग फ्रॉम माय ऑडियंस ऑन स्पॉट एंड क्रिएटेड सिनेरियोज राइट देन एंड देयर। एंड द अदर थिंग आई डू इज आई डू अ लॉट ऑफ वॉइसेस, सो आई हैव द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग कैरेक्टर्स। तो कुछ कोई सेलिब्रिटी बेस्ड है, तो कोई वैसे जेनेरिक है, रेडियो वाला टाइप एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो चीज़ जो है लोगों को एकदम से लगा यार ये क्या एक्सपीरियंस था। तो खवातीन को जो बताया उन खातून ने, तो उन्होंने बोला हाँ तो हमारा ऐसा। सो जब मैंने अनस्क्रिप्टेड लेडीज़ किया तो मैं आया तो मैंने कहा आप लोगों ने अनस्क्रिप्टेड पढ़ा हुआ है। अब खवातीन के माइंड में ये था अनस्क्रिप्टेड का मतलब है, मतलब आई डोंट जज देम, बट हाँ थोड़ा जज करना होगा। अनस्क्रिप्टेड का मतलब है अनफिल्टर्ड। मुझे ऐसी चीज़ें उस दिन पता लगी हैं कि मैं मतलब अपनी बेगम को शो के अंदर मेरे सामने ही बैठी करते गए, तो मैंने कहा आज के बाद तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि औरतें क्या सोचती हैं। क्योंकि it was so, I mean it was such a fun experience for me as well, because first time I was like यार ये अच्छा, मतलब एक आंटियां बैठी हुई हैं जो नानी दादियों की उम्र की हैं, and there is young girls as well, and there is the middle age वाली जो range है, who are extremely naughty and मतलब the suggestions they're giving and the thoughts, मैं मतलब लिहाज कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर एक दो तो मतलब, and you know every show there is always 1 or 2 people who will be like आपको याद रह जाते हैं कि यार इन्होंने बड़ा मजेदार एंगेज किया था। सो वो एक दो थी जिनको ना माइक का चांस चाहिए था, बस मैं भी कुछ बोल लूँ, मैं किसी और से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये खातून के सजेशंस आए जा रहे हैं ना, फिर मैं कहा अच्छा मैं आप पे आ ही जाता हूँ। सही अब
वो खातून, आई डोंट वांट टू गो इनटू अगेन पुटिंग अ कैनवस ऑन जजमेंट, लेकिन वो खातून बिल्कुल निकाब पोश अबाया के Oh. अंदर बैठी हुई, एंड मैं डायरेक्ट कभी भी किसी के पास इस तरह से नहीं जाता अनलेस दे इंटरैक्ट देमसेल्व्स. इट्स अ बेसिक डेकोरम आई फॉलो. Yeah. ठीक है, आपका एक कंफर्ट भी होता है ना किसी का, आप उसको अंडर द रेडार डाल दें. एंड शी वाज द मोस्ट फन ऑडियंस मेंबर इन द एंटायर क्राउड दैट नाइट. मतलब उन्होंने कोई 5 मिनट तक So जो है ना, appearances can be deceptive. यस, एंड वो खुद एक कॉर्पोरेट सेक्टर से थी, वो अपनी कहानियां बताना शुरू हुई. तो मैंने फिर उनको इवेंचुअली बोला कि मतलब आप, बाकी भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप सिर्फ अकेले नहीं है. सो यू नो दिस फन एक्सपीरियंस आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज दैट इज हाउ दैट नाइट हैपेंड. और फिर वो इतना डिमांड था उस शो का कि मुझे सेम मंथ में एक और शो करना पड़ा लेडीज के लिए, अगेन अ फुली सोल्ड आउट शो, बिकॉज इट वाज अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन टू एंजॉय हलाल कॉमेडी कह लें, एंड नॉट विद द जजमेंट ऑफ कि हम खुल के हंस नहीं सकते. आपने शुरू में एक फीडबैक बताया था ना, लोगों से पूछा कि आप कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हैं, किसी ने बोला कि आई लाफ्ड एंड आई फेल्ट गिल्टी. Yes. राइट. I think this is one more thing which I wanted to really break for in the society, वो कि ख़वातीन खुल के नहीं हंस रही. Yeah. सही है. So this is मुझे an तो एक opportunity. अपॉर्चुनिटी दी एक फेलो कोलीग्स ने, उनके नाम भी दे दूंगा अगर इफ़ यू वुड लाइक टू. मैं तो लिंक्डइन पे उनको बाकायदा क्रेडिट दिया है कि भाई इनका आइडिया था, मैंने फिर परफॉर्म किया. Yeah. अनम, ट्रेसी एंड दिस अदर गर्ल, 3 लोग थे कॉर्पोरेट के. तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छा यार, इन बेचारों को, क्योंकि मैंने सर्वे उसी वक्त लिया, मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड अ कॉमेडी शो बिफोर दिस. वुड यू बिलीव 90-95% ऑफ द ऑडियंस, उनका पहला शो वो शो था जो मैंने किया था. Yeah. उससे पहले उन्होंने कभी देखा ही नहीं था. ऑनलाइन देखा वो अलग बात है, बट बिल्कुल. लाइव कराची में. तो मैं दंग रह गया एज अ मार्केटियर कि अच्छा ये बिल्कुल फ्रेश सैम्पल साइज है. फिर अगला शो आया, अगेन अनदर 90% ऑफ वुमेन हु हैड नेवर सीन अ लाइव शो. तो उससे मुझे ये पता लगा अच्छा यार, दिस इज अ प्लेस वेयर फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट एज वेल एज There's a lot एज of अ स्पेस, potential. देयर इज अ पोटेंशियल, एंड दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू Yeah, वुमेन yeah. इन द अभी आपने सोसाइटी. अपनी एक स्किल बताई कि आप ऑडियंस को देख के you know you pick up things and you होता create है, something funny. एक्सप्रेशन होता है, इस कुछ वक्त कर आपके रहे हो. सामने एक बिहाइंड द कैमरा भी एक ऑडियंस बैठी है, सामने भी एक ऑडियंस बैठी है. We're all you know ears to you. हाँ. What would you do? देखो बिहाइंड द कैमरे वाले तो लोग नहीं देख सकते, तो रूसा तो सबको देख रही है ना. वो देख रही है, ये भी देख रहे हैं हाँ, आपको, और ये हाँ. वेट कर रहे हैं. नहीं तो What would you say? What would you do? भाई उसमें ये चैलेंज है आपके लिए. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. उसमें जनरली एक पहली चीज ये बड़ी ज़रूरी है बतानी, व्हेन यू आर इन अ कॉमेडी शो यू आर इन दैट माइंड फ्रेम. सही है. एंड व्हेन यू आर इन सच अ सेटिंग इट विल नॉट वर्क, Okay. बिकॉज इट्स एज सिंपल एज दिस. स्पेस से फ़र्क पड़ता है. सो फॉर True. एग्जांपल आई हैव डन कॉर्पोरेट शोज एज वेल, कि मुझे कॉर्पोरेट्स बुलाते हैं कि हमारी सेल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारी कॉमेडी कर लो. उसमें हम पहली सर पे कफन बांध के जाते हैं. Okay. और ये यूनिवर्सल जोक है, बड़े बड़े कमेडियंस, इंडियन हो अमेरिकन हो जो भी हो, वो कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट शो की सिर्फ एक ही हाईलाइट होती है कि पैसे जेब में पहले आ चुके होते हैं, स्टेज पे आप जाते हैं सुसाइड बॉम्बर बन के कि आप करेंगे. बॉम्बर इसलिए कहते हैं बिकॉज बॉम्ब करना इन कॉमेडी मीन्स दैट आपने कोई जोक किया, बहुत फनी होगा वैसे इन जनरल वो होगा, बट कहीं पे वो चला नहीं, और बिल्कुल वो नहीं क्रिकेट्स की आवाज़ आती है सन्नाटे में, तो कहते हैं ओ यू बॉम्ब्ड. तो दैट्स व्हाई दैट जोक इज देयर. नॉट अल्लाह ना करे वो वाला सुसाइड बॉम्बर नहीं, बट वो कि ओ आप बस फिर सुसाइड बॉम्बर बन के जा रहे हैं. तो आई थिंक दैट गिव्स यू दैट रिस्पांस. या चले अब एक काम करते हैं, एक और आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट है यहाँ पे हमारे पास, बिकॉज आई एम HR. ओके, सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स. अच्छा, ठीक है. और जनरली पाकिस्तानी वर्कफोर्स जो है उसने कंप्लेंट्स भेजी हैं, और आपका काम ये होगा, आई एम गोइंग टू रीड आउट दोस कंप्लेंट्स एंड यू हैव काइंड ऑफ 30 seconds टू मेक ईच कंप्लेंट फनी, ओके, साउंड फनी. ओके. अदरवाइज ऑफिशियली ये HR में फॉर्मल कंप्लेंट में भेज दूंगी. अभी तक मैंने होल्ड की हुई है अपने पास, वरना मैं फॉर्मल रिकॉर्ड कर लूंगी. आर यू रेडी फॉर दैट? Are these from, just one question, are these from various organizations or just one of yours? जनरल पाकिस्तानी वर्कफोर्स की कंप्लेंट्स हैं. ठीक है, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. बताएं. ठीक है, 30 seconds है आपके पास, you need to make. So are you ready for those complaints? I have those complaints written. ठीक है? Done. All right, the first complaint is that my boss CC'd my boss's boss on a reply all about kitchen microwave. What's the complaint? ये complaint है उसकी कि भाई मेरे बॉस ने मेरे बॉस के बॉस को
ईमेल कर दी, सीसी में रख लिया और एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। ये कंप्लेन। ओके, सो मतलब मेरे बॉस के बॉस ने उसके बॉस को रखा, मेरी कंप्लेन ये है कि बाकी सबको क्यों नहीं रखा। ओके, ठीक है, बाकी सबको क्यों नहीं लिखा, बाकी खानदान को क्यों अटेंशन नहीं? लें तो सबकी लें ना, मतलब ठीक है, 2-3 पे क्यों लिमिट कर रहे हैं। ओके। माय मैनेजर सेड वी आर लाइक फैमिली, देन डिनाइड माय ईद लीव एप्लीकेशंस। ये मेरी कंप्लेन है। वो इसलिए क्योंकि फैमिली ससुराल भी होती है, तो वहाँ पे वो ससुराल वाला कार्ड खेल गया मैनेजर। ओके, सो ये मतलब जायज़ कंप्लेन है कि मेरे साथ सुतेले का ट्रीटमेंट क्यों किया जब फैमिली बोला। ठीक पहले है, अपनाया फिर पराया कर दिया। ठीक राहुल। है। The company held a 2-hour team building session to improve communication, but nobody spoke. हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन फैमिली में तो इस तरह से ही होती है ना कि कोई बात ही नहीं करता। One इशू sided. भी है, वन साइडेड है। अब्बू बोलते हैं सब सुनते हैं, या ठीक अम्मी है। बोलती हैं सब सुनते हैं, आजकल बच्चे बोलते हैं सब सुनते हैं, हाँ। तो वन साइडेड ही होगी। My relative asked my salary at my cousin's wedding in front of 40 people. मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उसने मेरी उम्र क्यों नहीं पूछी, सिर्फ सैलरी क्यों पूछी है इन Okay. फ्रंट ऑफ 40 पीपल। ठीक है, चले। खातून होती तो उम्र का भी गिला कर लेती। My colleague has a motivational quote in his email signature. He has never met a deadline. मेरा कॉलीग सिर्फ मोटिवेशन में ही लगा हुआ है, वो मोटिवेशन में डेडलाइन का कोई जिक्र नहीं है, तो वो बस उसी में ही लगा हुआ है। सिर्फ मोटिवेशन की फिक्र है। जी, मोटिवेशन पे अंडरलाइन कीजिए। I'm going to read the first complaint. ठीक है? My boss CC'd my boss's boss on a reply all about the kitchen microwave. I'm really sorry to hear that. Should have been about the bed instead. Okay. My manager said we are like family, but he denied my leave application. I'm really sorry to hear that. He should have also denied your sick leaves. Okay. My company held a 2-hour team building session to improve communication, but nobody spoke. Because part of communication is listening, so you should understand. Sometimes you don't speak, you just stay in silence. Something you should practice. Okay. My relative asked my salary at my cousin's wedding in front of 40 people. I'm sorry to hear that. Next time I'll ensure your relative does it in front of 100. So you better be sure of your salary at that time. Okay. My colleague has a motivational quote in his email signature, but he's never met a deadline. That's all right, because motivations don't really mean that meeting deadlines. It's completely fine. He's motivated, unlike you. Yeah. Okay. HR sent a mental health awareness email the same week they announced a hiring freeze. You should be glad that it's a hiring freeze and not downsizing. Yeah. Okay. Yeah, that's a better one. My boss calls every Saturday at 11 p.m. It starts with just a quick one. My boss has issues with lasting long, so I think that's why he's doing quick ones. Yeah. Okay. I attended a leadership workshop. The trainer had never managed anyone in their life. Because the trainer is telling you about how leaders have managed him. Yeah. It still is a leadership workshop. Yeah. True. That's what the thing is. So, which one was the most difficult to make it funny? The most difficult, I think, generally speaking, it's more of the leaves wala, because leaves में deny कर दिया है, तो उस पे मतलब, you know, room to play is something which आपका is less. होता है। दूसरा ये होता है कि when you're improvising, because everything right now is improvised. Yeah. Nothing is scripted, right? I do improvise, but within improvising, by the way, I train people on improvisational skills and workshops पूरी करवाता हूँ। तो corporates में भी ये होता है। उसमें यही होता है कि there is a certain craft to it. So as much as people think कि भाई ये फिल्बदी comedy जिसे हम कहते हैं, या उसी वक्त बना रहे हैं कर रहे हैं, there is still some thought process in your mind, right? So अभी जैसे आपने शुरू में context दे दिया कि भाई HR की complaints आई हुई हैं, now instantly my mind frame is in that direction कि अच्छा अब complaints हैं, इसको dissolve करना है with something funny, right? Sensitivity को कहीं पे आपने वो नहीं करना, right? और कहीं पे अगर punch अप करना है, जैसे बॉस के ऊपर, लीडर के ऊपर, तो आप खुल के करें। True.
कोई नीची यानी जूनियर की बात आती है या फेलो की आती है, यू शुड बी केयरफुल विद व्हाट यू आर जोकिंग अबाउट, yeah. बिकॉज यू कुड बी पंचिंग डाउन एंड वहाँ सेंसिटिविटीज एफर्ट हो सकती True. हैं. सो द ऑडियंस, इफ दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस 100 पीपल एंड लिसनिंग टू दिस, आई हैव टू इंश्योर कि ये चीज़ ऐसा ना हो कि जो बेचारा ऑलरेडी वर्क प्लेस में एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको फ़नी जब लगेगा जब वो रिलेट करके किसी लीडर या बॉस की तफरी ले रहे हैं. इट्स द Yeah. सेम एज व्हेन यू क्वेश्चन द एलीट क्लास एंड यू डोंट joke about the poor. It's Yeah. as simple, right? So Yeah. similar, एक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है. एंड True. इसीलिए जब जैसे किसी ने कहा भाई माई बॉस डिनाइड माई लीव्स, तो अब उसमें HR को मैंने क्या किया, अभी आपको जो मैंने रिस्पॉन्स दिया, आई मेड द HR evil, Yeah. बिकॉज दैट इज द माइंडसेट दैट एवरीवन डज नो ऑफ कि यार True. HR बड़ा रूथलेस होता है. और फिर उनकी जो There are a lot of हरकतें, jokes on HR, by the way. trust me, I've had fair share of doing a lot of them in my corporate shows as Yeah. well. Okay. And because I am associated with the HR people इस तरह से भी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की Yeah. साइड पे भी काम करता हूँ, so I do know the qualms of what they go through. Yeah. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की क्लास हो रही होती है, फिर मैनेजमेंट Other की भी side होती की है, भी राइट? class कि भाई होती है. वो बेचारों के साथ भी कुछ मजबूरियां हैं. It's the toughest for an HR manager to ask somebody to leave. That kind of guilt that you carry with yourself, वो किसी के पास वो बिल्कुल. relatability नहीं है, right? बिल्कुल, बिल्कुल. People can only relate, I got fired. Nobody knows the one who had to take the step, उसके पास जिगरा या जो उसकी जो Courage build था कैसे, to right? manage that. So इसमें you don't need to negate the sensitivities of people. हाँ, अगर मैंने ये बोला कि जैसे एक और आपको जो दिया था वो ये था कि इसमें था ना कि बॉस ने वो सबको उसने ईमेल कर दी और वो माइक्रोवेव के बारे में था. सो ये लगा नेक्स्ट टाइम आई विल टेल अबाउट द बेड. नाउ द बेड इज अ टू प्रोंग अप्रोच. Yeah. सही है. तो वो इसलिए क्योंकि आपकी एक तो इतनी absurd चीज़ है कि एक छोटी सी माइक्रोवेव की बात थी, राइट? नाउ इट्स अबाउट कि वो आपको जब पर्सनलाइज होने पे आते हैं, सीनियर मैनेजमेंट जब आती है, तो कभी कभार वो आपको लगता है बहुत रूथलेस हो गया, ऐसी अजीब चीज़ से बात की है कि ज़रूरत नहीं थी सबके Yeah. सामने बोलने की. सो दैट्स व्हाई आई टुक अ वेरी एब्रप्ट एग्जांपल ऑफ अ Okay. बेड जो कि ऑफिस में होगा नहीं, बिल्कुल. वो घर का है, माइक्रोवेव ऑफिस में है, और द कॉफ़ी मशीन इज इन द Yeah, ऑफिस, yeah. राइट? कॉफ़ी मशीन बोलता, उसमें फ़नी ज़्यादा नहीं Yeah. होगा, Yeah. बट मीनिंग अगर आपको देना है या कोई थॉट लोगों को देनी है, समटाइम्स यू डू कॉमेडी फॉर द सिलीनेस ऑफ इट एंड पीपल विल लाफ, सिली जोक्स हो रहे हैं, राइट? बट समटाइम्स यू वांट टू गिव देम सम मैसेज, Yeah. यू वांट टू लीव सम थॉट के दे थिंक ओवर इट आफ्टर द शो, एंड वहाँ पे फिर आप बयान नहीं बांट रहे, बट यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन सोसाइटी के देखो ये है. Yeah. सो यही है कि HR के अंदर तो खैर, हैविंग सेड दैट, बहुत चीज़ें होती हैं. मार्केटिंग का भी मैं बहुत करता हूँ, आई कम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, सो मैं तो एडवर्टाइजिंग, ब्रांड्स, इन सब की मैं अच्छी खासी तबीयत Brand बजाते हैं. से करता अच्छा, हूँ. मुझे पता है लेटली अभी आपका एक शो हुआ है, I guess. जस्ट रिसेंटली संडे. Just recently. दैट वाज अ मदर्स डे स्पेशल. तो उसका बेस्ट, which one of your jokes was a hit, if you could replay? इट वाज अ वेरी डार्क जोक. Okay. बहुत डार्क था, बट वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उस पे, बिकॉज Okay. मुझे जब ऑडियंस ने बोला है, तो खवातीन होती है ना, उफ तौबा अल्लाह क्या बोल दिया, नहीं वो जैसे ओल्डर एज की होती Yeah. है. Yeah. तो आई वाज क्लोजिंग द शो एंड आई सेड के यू नो माँ तो माँ होती है, एंड वो करके ज़रा सेंटिमेंटल करके, Yeah. एंड देन आई सेड के मेरी जैसे मेरी भी माँ है, आज हम सब के बीच वो नहीं है क्योंकि वो घर पे है. Okay. तो मैंने सेड आप सब ये पॉज लिया तो वो सब यूँ है ना, लाइक क्योंकि वो घर पे हैं, तो इंस्टेंटली देयर वाज अ ब्लास्ट ऑफ लाफ, एंड देन आल्सो दे वर लाइक क्या बोल रहे हो, एंड यू नो Okay. लाइक because you're just breaking sentences, you're just The way you're delivering the it. way and that's where you know कि आपकी punchline या pause के अंदर क्या है, and a lot of times punchline से ज़्यादा आपके pauses के अंदर laugh होता है. Yeah. And which one was your best? Oh that so आजकल Gen Z के अंदर बहुत ज़्यादा माचा पीने का शौक हुआ है ना. Yeah. जितनी अजीब चीज़ें खा पी सकते हैं वो Gen Z को पसंद है. बिल्कुल. Right. अजीब इसलिए बोल रहा हूँ because matcha technically for me at least, one jokes apart, I'm allergic to it. I had it once. Okay. And 3 दिन तक हो जाता था, मतलब मेरी बेगम भी कह रही क्या खा पी क्या, मैंने कहा matcha पिया था, कि now I know कि ये है जिसने एलर्जी की है. Okay. And to me matcha is like, you know, मेहंदी का पानी आप पी रहे हैं, बिल्कुल. like that's what it tastes like, it smells like, right? Yeah. तो वो माचा जो था उसमें एक बिट आया था, क्योंकि आई वाज डूइंग सम क्राउड वर्क एट दैट टाइम, तो एक खातून ने बोला कि ओ यू नो माय सन लव्स माचा एंड माय सन इज इन लम्स, तो बस वो फिर लम्स और Matcha. माचा और यू नो
हॉस्टलाइट लाइफ एंड वो पूरी उस पे एक प्रेमिस एक बिल्ड किया था उसी वक्त मैंने. ओके. तो फिर वो माँ मदर्स डे पे तो है ही, और तो चाह भी हो सकता है, वो हाँ. चाह है. अब वो आप लोग बाकी पहुंच सकते हैं जहाँ से पहुंचना है. ठीक है. सो वो उस पे द क्राउड वाज प्रीटी फ्लिप्ड के यार ये कहाँ से कहाँ चीज चली गई है, क्योंकि एक खातून ने खुद बोल दिया ओ मेरे बेटे को बहुत पसंद है. तो बस उनके बेटे को फिर मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था. Okay. So that's what So happened. that was your best. Yeah, at that time. Okay. अच्छा. All right. Okay. यहाँ पे मेरे पास कुछ kind of statements हैं और complaints हैं. Okay. ठीक है. And I'm going to read those out to you. And these are very bold statements. And what I want you to do is आपने बताना है whether they are true or a myth. Okay. ठीक है. Okay. Or complicated. So you have three options. Okay. True, myth, या complicated. Okay. ठीक है. Are you ready for that? Ready. पहला statement है comedians are always the saddest person at the party. It's a myth. It's a myth. You're not the saddest person No. deep inside. Okay. ये एक belief है ना. Myth. Corporate people secretly hate their jobs. Oh, it's so true. It's so true. So true. Why is that so? For a lot of them, it's complicated, but that's like a relationship, love-hate relationship होता है ना. Yeah. तो मतलब करनी भी है, जहर भी लग रही है, गालियां भी देनी है, लेकिन करनी है. बिल्कुल. तो उनके लिए complicated है, but it's so true that they do have a hate their job relation, but Yeah. मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं. ठीक है. Pakistani managers take criticism personally. Absolutely true. इसीलिए वो managers होते हैं, वो leaders नहीं होते. Okay. Funny people make terrible partners. I can check with my wife. Okay. But no, but I think jokes apart, funny people ज़रूरी नहीं है कि comedians हो. So I believe it's absolutely false. Okay. Myth है. Because on a side note, if you have humor, sense of humor, you are in for a much sorted life compared to if you don't have one. Okay. So whether it's a man or a woman in the equation, you both need to have that sense of humor. It drives so many things a lot more simpler because life is complicated for everyone, right? So funny people actually matter a lot more over here. True. अच्छा, HR का भी एक perception है कि it exists for the company and not for the people. It's complicated. It's complicated. HR वाले के सामने आप कह रहे हैं. हाँ, तो it is complicated. सच बोलने को कहा था आपने, वो डबल टैप ना कराया होता तो शायद मैं. ठीक है. People who post gym selfies are deeply insecure. True. Okay. True. चले. अच्छा, एक और है every comedian is working out something. True. कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं. क्या बना रहे हैं आप अभी? ख्याली पुलाव. कौन सा वाला? भाई कुछ ना कुछ इसलिए होता है because you're constantly on the observational mode, right? Okay. And majority इस वक्त comics की do that. सिचुएशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई एम स्टिल इंट्रिग्ड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, बैक, behind the camera, on the camera, what peculiar thing that you've observed? सबसे पहले तो ये सब लोग इनको लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त उरूसा से कोई बहुत ही ऐसी बात कर दूं, वो अलग से एक बाइट निकल आए ना कि हमारा टीजर बन सके. तो कमेडियन आए कुछ तो ऐसी ऑल फॉल बात करे. मैं खुद वेट कर रही हूँ. हाँ, तो मुझे मैं आ रहा हूँ उस पे कि इनके एक्सप्रेशन से मुझे वो लग रहा है. उसका बीच में बाजा बजा तो इन सबका ना एकदम वो टोन ब्रेक हुआ एंड द फोकस वाज ऑन हिम. एंड उसी दौरान में फिर उरूसा का भी एक बॉडी लैंग्वेज ब्रेक हुआ, क्योंकि वो मैं अनलॉक नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू कर रही है, मैं इनका नहीं कर रहा. मैं कर रहा था तो मैं कुछ और तरह से फिर कर रहा होता. सो आई एम ऑन द रिसीविंग एंड राइट नाउ. राइट, बिल्कुल यू आर ऑन द रिसीविंग एंड. और उरूसा का मैं ना थोड़ा, क्योंकि शी इज आल्सो फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तो वो एक नेचुरल रिस्पेक्ट ऑफ डेकोरम रखा हुआ है. नहीं आप भूल जाए इस वक्त में कॉर्पोरेट. देखिए मेरा भी तो साइड हसल है. एक आप नहीं है ना क्रेजी जेंटलमैन, एक राइज बियॉन्ड द टाइटल्स भी बैठी हुई है खातून. तो वो, लेकिन वही वाली बात है ना कि यू कांट, जिनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है. बिल्कुल, वो तो नजर आ रहा है. इसलिए मेरी बातें बर्दाश्त कर रही हैं अभी तक, होपफुली. नीचे वीगो का नहीं लेके गई मुझे तो लेकिन ये कि दिस इज द प्रेमिस राइट नाउ. एंड आपका तो सिंपली है कि वो शुरू से जरा फॉर्मल था, अब हम लोग ये स्टेटमेंट्स लेंगे, अब हम ये बात करें.
कह नहीं इनका साइड हसल है, बनी हुई ये भी एचआर मैनेजर ही है अभी ना. जी, We have इसका this statement now, we'll talk about this, your performance for the year was so nice I have and a performance review also. हाँ होगा. I'm हाँ waiting for क्योंकि that. बॉडी लैंग्वेज वो एचआर वाली है ना, सीएचआरओ जी वाली जी पूरी चल रही देखिए, है. एक टीचर नहीं निकाल सकते आप अंदर से, हाँ ठीक है, क्योंकि अंदर बसी भी है, वो हाँ निकल आएगी हर थोड़ी देर बाद बाहर, बिल्कुल. छुपा के रखना पड़ता जी है। जी जी. और एक दूसरी एचआर वाली निकल आएगी, देखिए ठीक वो है, और एक HR वाली. तीसरी मम्मी भी निकल आएगी अच्छा अंदर अभी से। तक मम्मी तो मुझे नहीं याद दिला देंगी तो अलग बात है. नहीं नहीं है, लेकिन वो है एचआर वाली वो और नहीं आप एचआर हटा वाली और उषा तो पहले फ्रेम से चल रही है मेरे साथ ना. ओके, मतलब वो ठीक. तो फीलिंग चल रही है. चले, अब आपने बात करी थी ना परफॉर्मेंस हाँ रिव्यू जी. की, तो एक करते हैं, लेकिन इस परफॉर्मेंस रिव्यू में ट्विस्ट होना चाहिए, ठीक है। बताइए. ट्विस्ट ये होना चाहिए कि मैं परफॉर्मेंस रिव्यू कर रही हूँ एक ऐसे शख्स का, ठीक है, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने पॉज लिया बीच में, एक ऐसे शख्स का, ऐसे ऐसे शख्स का फिर जिसका सेंस फिर ऑफ वर्ड्स ह्यूमर बड़ा सोचे कि जबरदस्त, सही वर्ड्स बोलूं ठीक पॉलिटिकली है, करेक्ट. ठीक है। तो अब ये सीरियस नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरी बताएं. तरफ से आपको बड़े सीरियस मैट्रिक्स मिलेंगे, एक सीरियस रिव्यू हाँ. मिलेगा, और आपने इन्हीं सीरियस रिस्पॉन्सेस को हम्म. आपने अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करना। आप आपने समझ जाना है कि आपका आखिरी परफॉर्मेंस रिव्यू है, बस ठीक है, मैनेजर लेके बैठा, आप कह रहे हैं ऐसी कम तैसी, मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पूरा निकालूंगा, रेडी फॉर दैट। बिल्कुल. पिछली 2 नौकरियों पे यही किया था. चले ठीक है, देखते हैं ना, अब आई एम पुटिंग यू टू टेस्ट, ठीक है। हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ये बाद में बोलेंगे यार यू वर सो गुड, आई वांट टू हायर यू. ओके, ये हो सकता है कि भाई मैं आपसे कथा ताल्लुक ही करना चाहती हूँ. या मैं ये सोचूं कि भाई क्या इसके शो में जाया जाए या ना जाया जाए, हाँ ये भी हो या सकता है. जाना अच्छा. जरूरी है। हाँ दोनों ऑप्शन एचआर करता है ना, चुन चुन के मार रही है, ठीक अभी है। वही कर रही है. ठीक चले, है. ओके, पहला मैट्रिक है आपका, ठीक है, वैसे मैंने ओ ऑडियंस। लेवल्स किया है, मैट्रिक नहीं किया है. हाँ आगे नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो केपीआई मैट्रिक है अच्छा ना अच्छा आपका, केपीआई के. वो है ऑडियंस सेटिस्फेक्शन स्कोर, और ओके आपको स्कोर मिला है 4.2 आउट ऑफ 5, व्हिच इज Okay. प्रीटी गुड। ओके और जो एज अ मैनेजर मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, वो भी मैं आपको पढ़ देती हूँ बताइए बताइए. कि जब आपका अभी लास्ट शो हुआ था, तो वन आंटी फाइल्ड अ कंप्लेंट। ओके उन्होंने कहा कि भाई जो जोक्स थे वो दे हिट टू क्लोज टू होम, ओके. ठीक है, और अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो आपका 4.2 स्कोर तो है, लेकिन एक आंटी बड़ा नाराज हुई थी। तो मैम आपको तो पता है ना, सबको खुश नहीं कर सकते, आप तो जानती हैं, आप भी नहीं कर सकती, तो जैसे आप नहीं कर सकती वैसे हम भी नहीं कर सकते. तो वो आंटी के लिए आप क्या करेंगे? आंटी अंकल से गिला करें इस चीज का. एक आंटी खुश नहीं है ना, बाकी जी। 6 तो खुश थी, बाकी 6 खुश थी, तो बस 6 आउट ऑफ 7 चल गया ना. ठीक है। चले, यूज ऑफ कॉर्पोरेट वोकेबलरी, ठीक है, इस पे आपको मिले 0 आउट ऑफ 5, ठीक है जी. ठीक है। और कमेंट्स मैंने ये लिखे हैं कि आप कंसिस्टेंटली ट्रांसलेट करते हैं अप्रूव्ड कॉर्पोरेट लैंग्वेज इनटू व्हाट आई वुड कोट एक्चुअली मींस सिवियरली डिमोरलाइजिंग फॉर लीडरशिप, क्योंकि आप लीडरशिप जो है उसकी करते रहते हैं। मसला ये है कि जिस दिन लीडरशिप सही लीडर बन जाएंगे ना, तो मैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज के साथ भी साथ दे दूंगा. अच्छा, मसला ये है कि उनको समझ में फिर दूसरी आप लैंग्वेज लीडरशिप के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट लैंग्वेज से वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, और मेरी जो जवाब है सारे उस ज़बान के अंदर, उससे उनको मेरी बात समझ में तो आ जाती है ना. अब Okay. बुरी लग रही है अलग बात है, समझ तो रहे हैं, समझ रहे हैं, समझना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन, वी आर अ फैमिली ना. ओके, समझे? ऑलराइट, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस पे आपका स्कोर है 2 आउट ऑफ 5, ओके. ठीक है, और आप रूटीनली जो है स्टेज पास्ट मिडनाइट तक रखते हैं, ठीक है, अच्छा. और जब आपसे बाउंड्रीज के बारे में पूछा जाता है, तो आप कीपिंग योर अदर पार्ट ऑफ क्रेजी जेंटलमैन असाइड एंड द अदर वन, तो इन दोनों में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और यू जस्ट जेन्युइनली लाफ अबाउट इट। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि कितना टाइम है फालतू लीडरशिप के पास ना, कि आफ्टर मिडनाइट भी मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं. मतलब Okay. अपने घर से बाहर जो निकले हो, मेरे पीछे लगे हुए, स्टॉक करे जा रहे हो, उस पर कोई वो नहीं है. तो मुझे हंसी इसलिए आती है कि यार मेरी वर्क लाइफ बैलेंस में अपने लाइफ बैलेंस को तो देख लो. इतने वेले हो के मेरे पीछे लगे हुए हाथ धो के. ओके, ऑफिस में कर ले तो काफ़ी नहीं, मैं आफ्टर मिडनाइट भी स्टेज को खींचूंगा, और फिर सुबह आके पूछूंगा यू वर नॉट ऑन टाइम. ओके। तो मतलब हंसी ही आती है ना इस पर, और क्या बोलूँ मैं. ग्रोथ माइंडसेट पे आपको मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5, गलती हो गई,
5 तो नहीं मिलने चाहिए। ये मैंने क्यों लिखा 5? क्योंकि क्योंकि आपने आपको कई दफा जो है वॉर्न किया गया, अराउंड 47 टाइम्स मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपको बताया गया है कि ग्रो अप, फिर इससे भी बड़ा आप क्या होगा, यू नो यू डोंट ग्रो अप, मतलब कुदरत की बट तरफ से स्टिल द इतना ही मिला है। ऑडियंस हैज गिवन यू 5 आउट ऑफ 5। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए माइंडसेट जो है ना वो समझने और देखने की बात फर्क है ना, आपको जो दिख रहा है वो यही है, जी ग्रोथ इतनी है, लेकिन जो माइंडसेट है वो फील करने की समझने की बात है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था 5 आउट ऑफ 5 क्यों है, क्योंकि आपने खुद किया नहीं था मैम, आपके किसी छोटे ने करके दिया था, आदत है आप लोगों की, तो ये क्या क्या कह सकता हूँ। हो सकता है, लेकिन खैर चले, अब दे दिया तो दे दिया है। लेकिन ओवरऑल असेसमेंट जो है ना मेरी ये है कि यू नीड इम्प्रूवमेंट। हाँ ठीक है, वो तो हर एचआर वाले को लगता है, यू हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, बट बिल्कुल हाँ। देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन मेरा एक कंटिन्यूअस। सवाल मेरा एक सवाल है मैम जी आपसे, ये जी बताएं कि ये सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और जो नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है, ये एचआर वालों को कौन बताएगा? बताए ना, आप एचआर बताएं, पूरी दुनिया को बताती, एचआर वालों को कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा ना, बिल्कुल बताएंगे। तो तभी तो बोल रहा हूँ तो इस कि सब तो आपकी आपको भी असेसमेंट इम्प्रूवमेंट की हो रही जरूरत है। है, इस मेरी सब तो असेसमेंट आपकी लेके असेसमेंट हो रही है। असेसमेंट लेके बैठी है, पहले से अपना काम किसी और से सही से वेरीफाई नहीं करवाया। यू नीड इम्प्रूवमेंट इन वेरिफिकेशन No, प्रोसेस। no, the audience has given the score. You have potential to improve. It's okay. You I can know, do it I too. know, हाँ everyone does, हाँ but ठीक है। We are a family. Communicate करें ना, इस मसला मेरी नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि अंदर से आपको बोर्ड मीटिंग में नहीं इनवाइट किया जाएगा। कोई मसला नहीं है, आप बाहर बैठ के अपनी कॉमेडी कीजिएगा। कोई मसला नहीं है, हम ठीक है जी, करेंगे। चले ओके, लास्ट की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके जो आपने एक बेस्ट अपना तो बताया, मैं अभी भी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर बेस्ट ह्यूमर। बेस्ट ह्यूमर जो है वो दो चीज़ों से आता है, एक स्टेज जहाँ पे कॉमेडी शो हो रहा है, दूसरा जहाँ पे लोग पैसे दे के आते हैं ना। अच्छा, तो ये दो चीज़ों के साथ बेस्ट आता है। ओके, हाँ तो ये चीज़ नॉट विदाउट मनी। ओह बिल्कुल मनी नहीं। ब्रिंग्स इन द ह्यूमर। ओह यस यस यस। हाउ डू यू मैनेज दैट ह्यूमर इन योर लाइफ? Humor in life, if you try to manage it, it's actually a disaster. ओके, It's because humor एक मैं इस तरह से बताता हूँ लोगों को, जैसे एक सेंस ऑफ म्यूजिक एक बच्चे को बचपन से इवॉल्व होता है ना, वैसे ही एक सेंस ऑफ Yeah. ह्यूमर आपका इवॉल्व होता है। आप बच्चे को बचपन में 2 साल की उम्र में कव्वाली सुना देंगे, वो शोर मचाएगा कि क्या कर रहे हो, राइट? बट एक 16 साल के बंदे को जब आप बताएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करेगा। या Similarly, humor is also what evolves. So if you try too hard to be funny, there is a chance that you'll fall flat. या But if you are naturally being yourself and then sounding like yourself as well, and then people are connecting with something that you're sharing, या तो उसमें humor का चांस बेहतर आ जाता है, because आप उनको perspectives दे रहे हैं अपने, या right? जैसे ये माइक है सामने, तो आपको भी माइक दिख रहा है, इनको भी माइक दिख रहा है, मुझे भी। या लेकिन इफ आई से कि ये माइक नहीं समझे कि ये है, अब मैं जैसी कुछ आपको दे रहा हूँ, तो अब आपकी इमेजिनेशन में आप जब जा रहे हैं, you all will have different versions of what I'm saying. या Naturally, I'm using your energy to create that humor, while I already know what I'm trying to say. Right? या So humor को manage करना is very simple कि आप ठीक है corporate environment में आते होते हैं, लेकिन मेरी तो I think my USP jokes apart has been the power of humor, because मैंने जब corporate life चल रही थी, साथ में comedy की, I ventured into corporate trainings. मुझसे किसी ने recently पूछा था आप L&D की साइड पे कैसे आ गए? या I ventured because one fine day some corporate decided कि आप जरा हमारे यहाँ के एक talk दे दें। एक talk थी which was humor for happiness. This was the first ओके, corporate talk I did. उससे पहले university schools में तो चलते रहती थी चीज़ें, but this was my first break. And the reason they called me was कि यार तुम एक corporate के बंदे हो, so you can relate with the qualms of corporate life कैसी होती है, Yeah. नौकरी का पेशा, and because you're a comedian, so you can bring that merger and do. So this was my finding. And उसके बाद फिर मैंने trainings बनाई, workshops करवाई, वो बहुत ही unconventional किस्म के नाम भी थे, तो people were like कि इसमें क्या हो रहा है, या ठीक है? जैसे one of my workshops was about how you can improve employee happiness, ठीक है? ये एक फंक्शन है, लेकिन उसका वर्कशॉप का टाइटल अगर आपको मैं बताता हूँ तो वो इंस्टेंटली लोग कहते थे क्या पागल हो, ये किस तरह का टाइटल है? एंड पीपल वुड साइन अप ओनली फॉर दिस बिकॉज दे वुड। व्हाट वाज द टाइटल? सो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पे मल्टीपल मैं करवाता हूँ, लीडरशिप की भी है, बट आई एम गिविंग वन कैच वाला। तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस जनरली अगर आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस पे बहुत वास्ट तरह की वर्कशॉप्स होती हैं ना, Yeah. कि आप उसमें टीम बिल्डिंग की भी करते हैं, आप उसमें इंडिविजुअल टू टीम रिलेशन एंड वाइस वर्सा भी करते हैं।
तो इसके अंदर मैंने एक जो सबसे पहले शुरू में की थी, इट्स थोड़ा सा इसमें वो भी है, पॉप कल्चर रेफरेंस भी है, बिकॉज आई एम वेरी बिग ऑन मार्वल एंड डीसी एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो मैंने जो बनाया था वो था कि आई वांट टू बी थैनोस। Okay. दिस वाज द टाइटल ऑफ द वर्कशॉप। Okay. थैनोस एक कैरेक्टर था, जिसको नहीं पता, मार्वल में ही वाज अ वेरी बिग विलन कि पूरा यूनिवर्स लग गया उस एक को मारने के लिए, Okay. राइट? तो एवरी एम्प्लॉय हैज दैट फीलिंग कि यार ये जो बिग बॉस है ना, ये जो लीडर है, मैंने एक दिन ये बनना है। सही है। बट जो बनना है उसी को तुम बुरा भी कहते हो, विलन भी तुम्हारा वही So है। that's why. सो आई मेड दैट कनेक्शन कि आई वांट टू बी थैनोस वाज लिटरली द टाइटल ऑफ द वर्कशॉप। Okay. So one day I want to be Thanos. So it was a one-day workshop that I did. I had about 50 people ranging from FMCG, retail, banking, pharma, सब मिला के आए थे। Okay. And very mid-managerial वाले जो या junior managers वाले level के लोग थे। And I had kept a very exclusive fee for it कि मैं बहुत low fee पे एक coffee shop पे कर रहा था ये। Okay. Just to give them that experience. और सब अपने अपने वो लेके आए थे कि यार ये Thanos क्या है। Then I broke it down for them. और अब मेरी पूरी वर्कशॉप जिस तरह के ह्यूमर एलिमेंट्स उसमें थे वो नेचुरल थे कि भाई मेरे पास सारे पावर हो और मेरा सब कुछ हो, ये हो, लेकिन यार तुम उसी थैनोस को तो बड़ा वाला भी कह रहे हो अभी। सो यू आर ट्राइंग टू से दैट यू वांट टू एम टू बी समवन लाइक हिम सो दैट यू कैन बी इवल टू एवरीवन। Yeah. सो वो डाइसेक्ट करके लीडरशिप स्किल्स कैसे आपको बिल्ड करनी है, ड्राइव कैसे रखनी है, बट टू बी बेटर एंड हाउ डू यू So डू take बेटर। that role but not become him. यस, सो ये एक छोटा सा मिसाल है, राइट? तो इस तरह मैनेजिंग ह्यूमर, तो अब ये हो गया कि ह्यूमर वाज माय स्ट्रेंथ। सो इफ आई डाइसेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ह्यूमर, मैं फराज अहमद कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो ही स्टिल द गाय हु इज लाइट हार्टेड एंड यू नो फनी बातें हो जाती हैं इधर उधर। बट हाँ, आई थिंक जो ऑब्नॉक्शियस वाली बात है, जो बोर्ड रूम सेटिंग वाली चीज़ है, वो ऑब्वियसली विद टाइम यू इवॉल्व एज वेल एज अ प्रोफेशनल। तो आपको पता होता है कि अच्छा भाई अभी Yeah. सीईओ बैठे हैं, उनके सामने एक हद तक आप कर सकते हैं, राइट? बट वन थिंग विच आई स्टिल encourage people and I think आपका और मेरा जो पहला इंटरेक्शन हुआ था बल्कि that was for an HR conference. Yeah. वो कैसा एक्सपीरियंस था वो मेरा और आपका वो ऑफ द कैमरा में पता है, लेकिन ये कि that talk उसके बाद I had 15 people come to me thanking me. मैंने उनके लिए कोई फेवर नहीं किया था, बट they thanked me only because they said we cannot talk about these things openly the way you did. Okay. So the power that I get with humor is कि जो बात आप सीधे मुंह से स्ट्रेट फेस से बात करेंगे ना सीरियस टोन में, शायद बुरी लग जाए, सही है। but with humor you can say a lot more, which is why I say कि यार ये तो humor manages me, I don't manage humor. That's what it is. So since humor manages you, we're going to end today's episode on a final rapid fire round. Sure. ठीक है? Quick one. It's going to be tuck, tuck, tuck. I'm just going to give you a statement. First thought that comes to your mind, you're going to say that. All right? Done. LinkedIn. Amazing. Amazing. Pakistani aunties. They're great. Okay. वो आ नहीं रहा आपका वो वाला पार्ट. HR department. इस्तिखारे पे जाना चाहिए अब इसको। Okay. Motivational speaker. कुछ और काम कर लो प्लीज। We are like family here once again. अब ये कॉर्पोरेट में ही रहते हुए बता रहे हैं, जी. तो फिर से वही है, एब्सोल्युटली बुलशिट। Okay. Crying in the office bathroom. कर लो, मसला नहीं है, कर लो, रुलाओगे पगले। Okay. Team synergy. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। Okay. Stand-up comedian in Pakistan. बहुत पोटेंशियल है, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। Okay. Marriage pressure at 30s. अब बनता है यार, मतलब 40s पे क्या, मतलब इंजन विंजन जब फारिग हो जाएगा फिर उसके बाद क्या करोगे? Okay. All right. Rusa Miraj. That's a tough one. पक्की HR की खातून। All right. Thank you so much Faraz for Thank you for having your candid responses. ठीक है. मैंने बहुत छेड़ने की कोशिश की the funny crazy gentleman, but I think we were not able to give you that stage कि वो spontaneity नहीं निकल आई. But I'm very glad that you honestly shared your thoughts and you lived up to the expectation and the ritual of the black card. So that tapping really helped. Thank you Faraz so much for your candid responses. आप बहुत spontaneous रहे and you really proved कि आप impromptu बहुत सारी चीजें
Thank you. Thank bring you for out कर having me. लेते हैं. Thank you And for it having was me. so much fun to have you with us. और HR को भी आपने बड़ा छेड़ा है आज, मैं याद रखूंगी ये बात. कोई मसला ठीक नहीं, है, HR ने मुझे छेड़ा, मैंने I just returned the favor. चल कोई ऐसे- मसला नहीं है. इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर. इस मजाक मस्ती के साथ जो ये कर रहे हैं इनको करने दें. विद दिस वी कंक्लूड टुडेस एपिसोड. जुड़े रहिए राइज बियॉन्ड टाइटल से, बिकॉज यहाँ पे हम ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस आपके सामने लाते रहेंगे जहाँ मस्ती भी है, फन भी है और जहाँ पे बहुत सारी लर्निंग है. ज़बरदस्त जर्नीज़ हैं लोगों की जो आपके सामने आ रही हैं. और इसी तरह की स्टोरीज़ आप सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें, हमें बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग आउट, उरूसा मिराज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.